Morning students, in today's video I will explain the poem The Coromandel Fishers. This poem is written by Sarojini Naidu. First we shall learn learning outcomes, warm up of the story, and after it about the Coromandel area. About reading of this material, after we shall know about Sarojini Naidu and the summary of Coromandel Fishers. Let's start our topic from learning outcomes of the story. Read and understand the poem. रीड करेंगे और पोएम को समझेंगे. लर्न alliteration and personification. Do you know about alliteration and personification? These are figure of speech. Alliteration and personifications are figure of speech. Use determiners, quantifiers and distributives in sentences. Learn to read with proper tone and intonation. Suggest ways to reduce pollution. Write a short poem. Now about warm up of the poem. Have you ever been to the seashore? क्या कभी आप समुद्र के किनारे गए हैं? If yes, यदि हाँ, where in India or abroad did you go? मतलब अगर हाँ गए हैं तो कहाँ गए हैं, भारत में या विदेश में, मतलब भारत से बाहर, इंडिया से बाहर. Did you go and what did you see there? और आपने वहाँ पर क्या देखा? Seashore बेटा, like this picture, you can see this picture here and this picture. If not और नहीं गए, then do some research and find out about the things you can see on the seashore. तो फिर रिसर्च कीजिए और ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट कीजिए जो आप सी शोर पर देख सकते हैं, like this one. Now, the south-eastern coastline of India is often called the Coromandel Coast. भारत की जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट के नेम से जानते हैं. The word Coromandel is believed to have come from the way European traders in the 17th century mispronounced the name of a Tamil village called Carrimanal. कैरीमेनल नेम था एक विलेज का, उसी के तमिल मिसप्रोनाउंस्ड को ही कोरोमंडल नेम से जाना गया. दिस रीजन स्ट्रेचेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू तमिलनाडु. ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, वो फैला हुआ है कहाँ से? उड़ीसा से तमिलनाडु तक. इट हैज़ अ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एज इंडियन ट्रेडर्स सेट सेल from here hundreds of years ago to explore and conquer lands as far away as Indonesia. It was the Europeans who also settled here and began to build colonies, which eventually resulted in parts of the area being ruled by them. So here this is cross circular connection. So we know about Coromandel Coast. We knew about Coromandel Coast and warm up of the poem. Now we shall read about Sarojini Naidu, who is the poetess of this poem. Now students, I want to tell you about Sarojini Naidu. She was born in 1879 and 1949 was a political activist, feminist, freedom fighter and writer. She was also known as the Nightingale of India. She was elected a Fellow of the Royal Society of Literature. Some of her well-known works of poetry include The Golden Threshold, The Word of Time and The Feather of the Dawn. Now in simple words, I want to tell you about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was an Indian political activist. Sarojini Naidu जो इस पोएम की क्या है,
पोइटेस हैं, कवित्री हैं, वो क्या हैं, इंडियन एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल फिगर भी माना जाता है उन्हें, एंड पोइट एंड ग्रेट पोइटेस ऑफ इंडिया। शी वॉज बॉर्न ऑन 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद। उनका जन्म 13 फरवरी को हैदराबाद में हुआ था, 13 February in 1879. She was an important figure in India's struggle for independence from colonial rules. She is also known as the Nightingale of India और भारत कोकिला। उनको भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नेम से भी जाना जाता है। These names were given her by Mahatma Gandhi because of color, imagery and lyrical quality of her poetry. She was the president of India. She was the president of Indian National Congress in 1925. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी in 1925 में, and she was became the first governor of UP in 1947 और 1947 में उन्हें यूपी का फर्स्ट गवर्नर भी बनाया गया। She was educated in Madras, London and Cambridge. She became a follower of Mahatma Gandhi and his ideas of Swaraj. She died of a cardiac arrest on 2 March 1949 in Lucknow. 1949 in Lucknow on 2 March she was died. वह 2 मार्च 1949 में लखनऊ में क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। शी वॉज डेड। नाउ इन दिस वीडियो I shall explain you the summary of the poem Coromandel Fishers. Sarojini Naidu in the poem The Coromandel Fishers has described the beauty of nature. जो सरोजनी नायडू हमारी जो पोइटेंस हैं, उन्होंने इस पोएम में कोरोमंडल फिशर्स में क्या किया है, ब्यूटी ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया है। एंड द फॉल कल्चर ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। इट डेपिक्ट्स द relationship of fishermen with nature. इन्होंने फिशरमैन और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी डिस्क्राइब किया है। नेचर स्टैंड्स एज सिंबल ऑफ ब्यूटी दैट एक्सप्रेसेस द ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। शी आस्क्ड द फिशर्स फॉल टू वेक अप। उन्होंने जो फिशरमैन हैं, फिशर्स फॉल्क है, उनसे कहा है टू वेक अप, जागने के लिए। एंड आफ्टर देयर प्रेयर्स टू द मॉर्निंग लाइट, और अपनी प्रेयर्स के बाद जो सुबह हो गई है वहाँ पर अपने वर्क के लिए इंस्पायर किया है। द विंड इज़ काल्म, हवा कैसी है, बिल्कुल शांत है। एंड क्वाइट लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। दैट स्लीप साउंडली आफ्टर, जो गहरी नींद में सोया हुआ है। आफ्टर क्राइंग द होल नाइट, पूरी रात जागने के बाद, पूरी रात रोने के बाद। शी आस्क्ड द फिशरमैन, वो फिशरमैन से कहती हैं टू गैदर द नेट्स, अपने जाल को इकट्ठा करने के लिए। एंड सेट देयर कैटेमरन्स फ्री एंड सेट आउट इनटू द सी, अपने जाल को इकट्ठा करें और जो समुद्र है वहाँ पर आकर अपने जाल को समुद्र में फैला दें, सेट आउट कर दें। टुगेदर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, और लहरों में जो वेल्थ है उसको क्या कर लें, गैदर कर लें, इकट्ठा कर लें। क्या वेल्थ है लहरों में, जब समुद्र में लहरें उठती हैं और गिरती हैं तो मछलियाँ भी उनके साथ आती हैं, तो अपने जाल को जब वो फैलाएंगे तो उसमें क्या फंसेंगी, मछलियाँ फंसेंगी, और वही उनके लिए क्या है, वेल्थ है। एज दे आर द किंग्स ऑफ द सी, क्योंकि वे क्या हैं, समुद्र के राजा हैं। शी आस्क्ड द फिशरमैन, वह फिशरमैन से कहती हैं नॉट टू डिले, कि वो देर ना करें। एंड क्विकली सेट फोर्थ इन द ट्रैक ऑफ द शी गर्ल्स कॉल,
और जल्दी से अपने जाल को समुद्र में फैला दें, क्योंकि जो सी गर्ल्स हैं वो उनको बुला रही हैं। शी comforts the falls by saying that the sea is their mother. शी comforts the falls, उन्हें ये by saying that, उन्हें यह कहने में, जो फिशरमैन्स का ग्रुप है उससे उन्हें ये कहने में खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, दैट द शी इज़ देयर मदर, कि जो समुद्र है वो उनकी माँ है। द क्लाउड इज़ देयर ब्रदर, और जो बादल हैं वो उनके क्या हैं, भाई हैं। एंड द वेव्स टॉस देयर बोट्स एट सनसेट, और जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो उनकी नाव को सनसेट, सूर्य के छिपने तक क्या करेंगी, ड्राइव करेंगी, उनको चलाएंगी। देम फार, दूर तक। गॉड हु कंट्रोल्स द स्टॉर्म विल प्रोटेक्ट देयर लाइव्स फ्रॉम इट्स रेज, ईश्वर जो क्या है, कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल किए हुए किसको, स्टॉर्म को, विल प्रोटेक्ट, वह प्रोटेक्ट करेगा देयर लाइव्स, उनके जीवन को, फ्रॉम इट्स रेज, जो समुद्र से उनके जीवन में जो डिस्ट्रॉय हो सकता था, डिस्ट्रक्शन हो सकता था, विनाश हो सकता था, उससे ईश्वर उनको क्या करेगा, रक्षा करेगा। शी आल्सो सेज दैट, वो इसके साथ साथ यह भी कहती हैं कि द कोकोनट ग्लैड गिव्स शेड, जो कोकोनट पेड़ हैं वो उनको छाया देंगे। एंड द स्वीट फ्रेगनेंस ऑफ द मैंगो ग्रोव इज़ सूथिंग, और जो आम के पेड़ हैं, जो आम का बगीचा है, बाग है, वहाँ पर उन्हें क्या मिलेगी, फ्रेश फ्रेगनेंस, खुशबू मिलेगी। द पोइम इज़ अ कॉल टू द फिशरमैन, जो पोइम है वो फिशरमैन्स को बुलाने के लिए है। टू गैदर देयर नेट्स एंड सेट टू शेड टू कैच फिश, और फिशरमैन्स को बुलाने के लिए है, उनके जाल को सेट करने के लिए, और कैच मतलब कैच फिशेस, फिश को पकड़ने के लिए। तो बेटा इन शॉर्ट वी कैन से डैट सरोजनी नायडू asked the fisherman to catch the fishes into the seas, जो सरोजनी नायडू हैं वो फिशरमैन्स को बुलाती हैं और अपने नेट को फैलाने के लिए कहती हैं। जो फिशरमैन्स हैं वो आएँ और अपने नेट को फैलाएं और समुद्र में जितनी भी मछलियाँ हैं उनको इकट्ठा कर लें। बिकॉज द फिश आर द वेल्थ ऑफ फिशरमैन, क्योंकि जो फ़िश हैं वो फिशरमैन्स के लिए क्या हैं, उनकी वेल्थ हैं। And nature in the poem she also admires the nature because nature stands as a symbol of beauty, क्यों वो इसके साथ साथ नेचर को भी एडमायर करती हैं, क्योंकि नेचर स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, क्योंकि नेचर जो है वो ब्यूटी, सुंदरता का क्या है, प्रतीक है। नेचर सुंदरता का प्रतीक है। दैट एक्सप्रेसेस द ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, जो ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है हमारे जीवन के। सो इन द पोएम सरोजनी नायडू आज द फिशर्स फॉल्क टू वेक अप, इसलिए यहाँ पर जो सरोजनी नायडू हैं वो फिशरमैन्स को जागने के लिए कहती हैं। एंड टू गैदर एट द सी शोर, और इकट्ठा होने के लिए कहती हैं कहाँ पर, सी शोर पर, समुद्र के किनारे। सो बेटा that is all for today in this poem. This is the summary of the poem The Coromandel Fisher, and this is a very beautiful poem that is written by Sarojini Naidu, who was the first governor of UP in 1947. So that was all for today. Thank you for listening me carefully. Dear students, you all write down the summary of the Coromandel Fisher on your fair notebook. So thank you for today and meet in next video.